Okay, so let's just start for the Yeah. topic what for what we are here. So first of all, thank you. I just want to introduce with all the speakers what we have today from different area and from the different company. Okay, so there are five speakers for now today, guys. So first of all, there is CMA Pankaj Bachwani. He is currently in Dubai and working there. And we have CMA Anshika Tyagi. She is in Delhi right now. CMA Rohan Sharma, he is from Agra. CMA Pankaj Singh, and he is in Dhanbad. And CMA Robin, and he is currently in Pune. So today, the basic and the most important topic that all of we are facing, we are going to talk about that how we are still struggling, and most of the CMAs are still struggling and thought of that what to do next, even after passing out the CMA examination, because lots of the things which are there we are not aware while we are studying, but once we pass out and once we finish our study, we get to know lot of the more things that we need to know, that while we are in a study process we didn't aware about all these things, that we have to know about all these things also. So the two major topic that we are going to discuss in this webinar today is that the challenges faced by the pass out student after passing out the examination, of course, and how to improve the efficiency in the study, that how you can able to study more and have some more efficiency whatever the stuff you are studying from whatever the teachers you are studying. So first, I'll go with some topics. So let's just start with Anshika. So while we are studying, the basic in mass of the student, not for everyone, but most of the student, it's there in the mind that once we finish the study, it's end. No more struggling, no more study, no more keep on doing the things for upgrading yourself. This is the basic funda what we are carrying on in our head while we are studying. We can just come out for our packages, how much money I'm earning, but how it needs to be grow and how it need to be changes, it's not thinking that while we are studying, it's not there in our mind. So what do you think that the passing out the CMA is just a end or a new beginning? एज पर माई एक्सपीरियंस ये मतलब मेरे एक्सपीरियंस है या किसी अदर के एक्सपीरियंस है इट्स टोटली लाइक कि ये आपके लिए एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है एंड होगा लेकिन किस चीज का होगा सिर्फ आपकी स्टडीज का एंड होगा और एंड भी हर किसी के लिए स्टडीज का नहीं होगा स्टडीज में भी कुछ बच्चे जो सीएमए कर लेते हैं वो फर्दर स्टडीज के लिए देखते हैं तो एक पॉइंट पे हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा एक प्रोफेशनल जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम एंटर करेंगे एक नए वर्ल्ड में हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारी स्टडीज एक पार्ट को एंड हो सकती है स्टडीज सिर्फ और सिर्फ जो हम क्लासेस वाला रेगुलर वाली स्टडीज हम बोलते हैं वो एक टाइप से एंड हो सकती है लेकिन फिर भी यहाँ से हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी हम एक नए वर्ल्ड में एंटर करेंगे और हम लगता है कि एक नए वर्ल्ड में जब हम एंटर करेंगे तो हम वहाँ पे अपने हमें अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट करना है प्रेजेंट करने नए वर्ल्ड में हमें बहुत कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हमें बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ेगा अभी तक जो हमने जो कंपटीशन फेस किया था वो हमने सिर्फ एक स्टूडेंट लेवल का कंपटीशन फेस किया था और वो भी अपने स्टैंडर्ड के लोगों के साथ में कंपटीशन फेस किया था लेकिन जब हम एक नए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करेंगे वहां पे हमें कंपटीशन जो फेस करना है वो उन लोगों के साथ कंपटीशन करना है तो अभी तक जो हम स्टडी में कर रहे थे जो हम सीएमए स्टूडेंट मैं भी जब सीएमए इंटर में थी तो मुझे लगता था कि बस सीएमए क्लियर कर लेना है और उसके बाद तो अपने मजे हैं उसके बाद तो कुछ नहीं है लाइक उसके बाद तो अच्छा पैकेज मिलेगा और अपनी जैसे मर्जी लाइफ होगी वैसे जीना पड़ेगा कोई पढ़ाई का बर्डन नहीं होगा ऐसे लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है जब मेरा फाइनल क्लियर हुआ तब मुझे पता चला तो मुझे भी ऐसे लगा था कि सीएमए क्लियर करना है बस एंड देन उसके बाद तो पैसों में खेलना है मेरा यही था लेकिन जब मैं फाइनल में आके मुझे पता चला लाइक जब कैंपस मेरा नहीं हुआ था अभी तक ये था कि जब मैं 3 अच्छी कंपनी में शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगा मेरा कैंपस में लेकिन जब कैंपस नहीं हुआ उसके बाद का जो स्ट्रगल मैंने फेस किया उसके बाद जो मुझे पता चला कि यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुमने क्लियर कर लिया तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी जॉब तो मिल जाती है एक्चुअली लेकिन उसके लिए आपको इतना सारा कंपटीशन फेस करना होता है मैंने इतनी सारी कंपनीज में इंटरव्यू दिए थे कहीं पे मेरा नहीं हुआ कभी कभी मुझे लगता था कि हो जाना चाहिए था लेकिन कहीं ना कहीं मुझ में कमी थी तो उन चीजों पे हमें वर्क करना पड़ेगा जिन चीजों में हमें कमी थी तो बस मैं तो यही बोलूंगी कि यहाँ से हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है हमें एक नए कंपटीशन में लाइक ऐसे लोगों के साथ कंपटीशन फेस करना होता है जो
जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो आप जैसे बहुत सारी वैकेंसी होती है, उसमें सीए वालों को भी बुलाया जाता है, सीएमए वालों को भी बुलाया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डमी वाले होते हैं, उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता है, और उनको फेस करना है उस बंदे के साथ कंपटीशन जो सीए कर रखा है, जिसने सीएमए कर रखा है, उसको 5 साल का एक्सपीरियंस है। वो लोग भी उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए आते हैं। तो आप सोच सकते हो कि आपका कंपटीशन लेवल कहाँ जाने वाला है। तो उस चीज पे आपको वर्क करना है, तो आपका एक नया जर्नी स्टार्ट होगी। नई जर्नी के लिए आपको अभी से प्रिपेयर रहना है, अभी से अपना माइंडसेट प्रिपेयर करके चलना है कि आपको फ्यूचर में क्या क्या चीजें फेस करनी है। और फ्यूचर में सबसे बड़ा होता है कि आपको कंपटीशन जो है, जॉब के लिए कंपटीशन फेस करना है, और आपको इतना एबल होना है, हर आपकी अपनी इतनी स्किल डेवलप करनी है कि कैसे भी करके आपको जिस जॉब के लिए जा रहे हो आपको वो ग्रैब करने की कोशिश करना है। दैट्स इट। Okay. So anybody else, guys? What do you think? It's a new start or ending? What do you say about this? It's the actual start, I would say. It's not a new beginning. It's not something that we were thinking कि अब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद there's no nothing. The क्लियर होने के बाद ही आपकी असली जर्नी स्टार्ट होती है. So मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपकी सोच ऐसी है कि मेरा तो बस क्लियर हो जाए and then I'll get a job और मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, it's not at all like that. Let me just give you a little bit of reality check. Reality ये है कि you have to always stay updated with all the laws and procedures that are going around the world in order for you to be, competent and look for better opportunities. You have to always keep on looking for developing your skills, because it's a huge world. You cannot know everything by just the degrees that you've got. You would have to learn a lot from the practical world. So if you need to shift your mindset from saturated mindset to a growth mindset, that will take you to a new heights that you might not have even thought that मैं इतना कुछ कर सकता हूँ. So just try to focus on developing your skills, and that's the key.